परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, अनंत पूर्ण, परम चिदाकाश, परम शांति, स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण, स्वस्वरूप, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। शून्यभास, अनंत कोटि, महाकल्पो है ही नहीं। આજે શું થયું ખબર છે? એટલે કોઈને અંદર વિશ્વમાં સવારે કોઈને કહેતા હતા બ્રાહ્મણમાં, બ્રાહ્મણ તો છે પછી પેલો તો વિશ્વ એટલે અંદર કોઈ કંઈ કહેતો હતો એટલે એને એમ કીધું ઉપનિષદ બ્રહ્મસૂત્ર ગીતામાં કંઈ શંકા રહેતી હોય તો અંદર મન પરમાત્મામાં પૂરેપૂરું લગાવીએ એમ કીધું ને, મન અંદર પરમાત્મામાં પૂરેપૂરું લગાવી એટલે અંદર પરમાત્મામાં પૂરેપૂરું એમ એની સાથે જ એલા પરમ ચિદાકાશ, પરમ જ્યોતિ, અખંડ જ્યોતિ, સાક્ષી, પરમ ચિદાકાશ, પરમ જ્યોતિ, અખંડ જ્યોતિ, अनंत पूर्ण, परम चिदाकाश, परम शांति, स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण, स्वस्वरूप, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। शून्यभास, अनंत कोटि, महाकल्पो है ही नहीं। एला પછી નિત્યક્રમ કર્યો ને એક્ઝેક્ટ 7 જ પૂરો થયો એટલે નીચે આવ્યા સીધું 7 પર સેકન્ડ નો જવા દીધી 7 ચાલુ હતું એવું થયું। નહીં તો આમ 5:30 1.5 કલાક જોયું શાંતિ શાંતિ નિત્યક્રમ કરે તો 1.5 કલાક જોયું, 5:15 5:30 ચાલુ કરી શાંતિ શાંતિ કરે અને 6 એલાર્મ જગાડે પરમ ચિદાકાશ પરમ। પણ ક્યારે અંદર એમ થયું, પેલો એમ કહેતો હતો ભાવી મને શબ્દ થયો એની કોઈ લૌકિક બાબતમાં એટલે એનાથી મને પ્રેરણા થઈ કે આમ થશે તેમ થયું, હું લોકોને કહું તો લોકો હસે છે, એનું કેવું એમ એ લૌકિક બાબત હતી। મને એમ થયું એક શબ્દથી એવી પ્રેરણા થઈ એમ કે આમ થશે એટલે એમ થયું તો હું લોકોને કહું તો લોકો હસે છે એવું એનું। અને અમે એમ કહ્યું સામે કે આપણને એટલે જો ઉપનિષદ બ્રહ્મસૂત્ર ગીતા એટલે જે એકદમ પરમાત્માનું સ્વરૂપ પરમાત્મા જ પ્રકાશતા હોય એવા સત્શાસ્ત્રો, એમાં શંકા થતી હોય તો આપણે અંદર આ શબ્દ ચોખ્ખા હતા, અંદર મન આ બધા અક્ષરો ચોખ્ખા હતા, અંદર મન પરમાત્મામાં પૂરેપૂરું લગાવીએ એમ 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 જે પરમાત્મા શબ્દ એમ ત્યાંથી એરમ શરૂ છે। પરમ ચિદાકાશ, પરમ જ્યોતિ, અખંડ જ્યોતિ એટલે પરમાત્મામાં પૂરેપૂરું લગાવીએ એ શબ્દ અંદર હતો જ, એ આવતો જ હતો એટલે અંદરથી જ પ્રેરણા આવે એમ કહેવું। મન અંદર પરમાત્મામાં પૂરેપૂરું લગાવીએ આ બધા શબ્દ એક્ઝેક્ટ હતા એટલે અંદરથી જ પ્રેરણા આવે એમ કહેવું। પણ પરમાત્મા શબ્દ થયો ત્યાં જ પરમ ચિદાકાશ, પરમ જ્યોતિ, અખંડ। હવે દાખલા તરીકે જે અનંતપૂર્ણ પરબ્રહ્મ છે પોતે તો એ જ પ્રકાશ છે કે હું પોતે અનંતપૂર્ણ પરબ્રહ્મ છું, સ્વપ્રકાશ। પછી મેં શું અમે જોવાનું ક્યાં રહ્યું? તમે દાખલા તરીકે
કોઈ એકદમ સ્ટાન્ડર્ડ જે વસ્તુ રાખતો હોય અને તમે બજારમાં જાઓ ને એમ કહો કે મને સ્ટાન્ડર્ડ વસ્તુ આપો, બરાબર, તો લઈ જાઓ. આ 100% સ્ટાન્ડર્ડ છે. તમારે જોવા પણ નથી, આમાં કાંઈ જોવા પણ નથી એમ કહે છે ને. અને જો બીજું નીકળે તો તમે પાછું આપે એમ ન કહે. તો એમાં કેમ એવું હોય છે લૌકિક? એટલે એનો અર્થ એવો થયો કે પરમાત્મા પોતે જ જે સ્વપ્ન છે એમાં પરમાત્મા પોતે જ છે. તો પછી જાગ્રત પરમાત્મા પોતે છે એમાં કહેવાનું શું? આ તો એનો ઉગાડ. એ સ્વપ્ન છે એ પરમાત્મા પોતે જ છે એવું થયું ને. ત્યાં આગળ સહી મારી ને કે પરમ ચિદાકાશ એમ મન અંદર પરમાત્મામાં, અંદર પૂરેપૂરું પરમાત્મામાં લગાવીએ એટલે અંદરથી પ્રેરણા આવે તો પરમ ચિદાકાશ, પરમ જ્યોતિ, અખંડ. તો પછી જાગ્રત સ્વપ્નનો ભેદ ક્યાં રહ્યો? મને સુસુપ્તિનો એક જ થઈ ગયું ને કે બધું આ પરમાત્મા એક રસ જ છે, અનંત અને અખંડ અને અભેદ એવું છે ને. એટલે બધું ચિદાકાશ છે એ 100% સત્ય નિસંશય બધું ચિદાકાશ છે. એટલે સહજ શબ્દ છે, શબ્દ નથી પણ પ્રકાશ છે, સહજ પ્રકાશ છે એવું છે. ऐसा अंदर ब्राह्मण में हुआ ऐसा कि मन अंदर पूरे पूरा परमात्मा में लगाए तो अंदर से प्रेरणा आती है. तो परमात्मा शब्द अंदर आया, उसके साथ मोबाइल का जो करना है ना, रिंग टोन क्या एलार्म, एलार्म, परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति. मैंने ये सब खाली ये अच्छा अभी देखो प्रकाश से बता. जीसस ने ऐसा कहा कि आई एंड माय फादर आर वन અને હું ને પરમ પિતા પરમેશ્વર એક છીએ. તો અમે એવી રીતે અર્થ ન કરીએ એટલે આ લોકો જીસસને પકડે. મેં દાખલા તરીકે પેલા રાવ એમ કહ્યું થેન્ક્સ પ્રભુ, એટલે હું થેન્ક હિમ એમ કીધું ને મેં. એટલે થેન્ક હિમ એટલે એને કહેવાનો અર્થ એમ કે उसमें हम कोई आगवा मैंने स्वतंत्र अलग दूसरा नहीं है. तो आ બધા પકડ્યું કરોડો એવી રીતે હમ उससे अलग नहीं है, बराबर. दूसरा मैंने आगवा मैंने स्वतंत्र, हमारी स्वतंत्र हस्ती नहीं है, हम उसमें अलग दूसरे नहीं है. समझना था कि नहीं? तो लोग क्या पकड़ेंगे? इसको पकड़ेंगे. हाँ आप उसमें अलग दूसरे नहीं इसलिए आप ये है. तो हम ऐसा नहीं कहेंगे, हम ऐसे कहेंगे कि उसका अर्थ ये है, क्योंकि योग वैसिट में ऐसे शब्द आते हैं कि ब्रह्म में जगत अलग दूसरा नहीं है, ब्रह्म में जगत अभिन्न है. तो वो अर्थ ऐसा लगे कि जगत ब्रह्म है. तो ऐसा यहाँ नहीं आया कभी कि ब्रह्म ब्रह्म ही है और जगत है ही नहीं. ऐसा वो ऐसे रस है ब्रह्म रियलिटी है. यहाँ भी ऐसा कि थैंक हिम, थैंक ऑलमाइटी. तो उसका कहना क्या है कि हम हमारा अंदर ऐसा है कि हम उसमें अलग दूसरे नहीं है. मैंने उसका क्या हुआ कि वो जो है तो वही ऑल एंड सोल है, वो सब कुछ है, हम अलग दूसरे नहीं. मैंने हम है ही नहीं. ऐसा माँ पिता का सब कुछ है, मैं कुछ नहीं है. देखो प्रकाश में कितना अंतर हो जाए. अभी इसको कोई नहीं मानेंगे. उसका कारण क्या है कि जैसे रमण कहते कि अज्ञानी अपने को देह मानता है तो ज्ञानी को भी देह मानता है. तो फिर दोनों साइड होगी, पॉजिटिव नेगेटिव. ज्ञानी को देह मानेगा तो ज्ञानी को सामान्य मानस देखेगा, वो भी हो सकता है. और यदि कोई एकदम संपूर्ण श्रद्धा वाला होगा तो ऐसा कहे कि वो उससे भिन्न नहीं है तो वो भी वही है. तो दोनों बात खोटी है. उसको सामान्य मानस देखे वो बात खोटी है क्योंकि मैं कुछ नहीं है, माँ पिता का सब कुछ है. और उसको माँ पिता का मैंने वो बात भी खोटी है क्योंकि माँ पिता का है जो है सो है. ये क्लैरिटी आपको कहीं और है नित्य नित्य प्रकाश और प्रैक्टिकल. ऐसा कैसे समझ आया कि नहीं? उसमें क्या अर्थ किया कि उसने कहा आई एंड माय फादर आर वन. तो मैं और परम पिता परमेश्वर एक है. तो हाँ तो एक है इसलिए जीसस प्रभु है. ऐसा हम और प्रभु एक है तो जीसस प्रभु है. ऐसा हो गया ना. ऐसा यहाँ नहीं, प्रभु ही प्रभु है, कोई अलग दूसरा प्रभु नहीं. पहले से ऐसा प्रकाश है. प्रभु बीजो थयो नहीं, प्रभु बीजो थसे नहीं. पहले से ऐसा प्रभु दूसरा हुआ नहीं और प्रभु दूसरा होगा नहीं. ऐसा है ना. तो ये समझ में नहीं आती ना, लोगों को समझ में नहीं आता है, नहीं आता है. तो भाई वो बढ़ गया तो प्रभु प्रभु यहाँ क्लियर था होनी जरूर है.
જો ક્લિયર થાવ તો કંઈક શું થાય, મેળ પડે એવું કે શું કે મેળ પડે, નહીં તો મેળ જ ન ખાય. પછી પોતાના ઊંથી જો બધું જોવા જાણવા જઈએ ને, કરવા રહેવા કરવા માનવા તો કેવું છે આમ સમજવા વિચારવા એ તો ખબર જ ન પડે. एकदम क्लियर थी जाए कि माचिदा का सब कुछ है, मैं कुछ नहीं है. मैंने माचिदा का स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश, माचिदा का ज्योति अनंत अखंड अभेद, माचिदा का ज्योति महातत्व महासामान्य, माचिदा का कैवल्य अनिशुद्ध आर पार, कैवल्य सदा एक रूप वन, माचिदा का स्वसंवेद्य सहज निर्विकल्प, माचिदा का सब कुछ है, मैं कुछ नहीं है, माचिदा का परम कैवल्य परम शांति. तो एक्सप्रेशन पर कितना चोखा है माचिदा का सच्चे एवं. पर પછી પ્રભુ પ્રભુ प्रभु कहते तो हमें बताने प्रभु कही वे आज देश में ये देश में आए है ना, तो 1976 तो 48 ईयर्स बराबर. हमारा महाभेनिस प्रभु को 50 हो गए 1974 बराबर. उसके 2 साल को हिमालय में से पहले तो ओमकारेश्वर आए, में आए, बाद में उधर गए आनंदी गए, पहले आनंदी गए आनंद आश्रम स्वामी के साथ रहे 4 दिन, बाद में बोरिया महादेव आए. ऐसा 10 अक्टूबर रात को 10. तो तब से भी हम क्या कहते हैं, सबको प्रभु कहते हैं, तो प्रशांत प्रभु ऐसा नहीं कहते हैं, विनोद प्रभु ऐसा कहते हैं. और छोटी हो तो माता जी, बड़ी हो तो माड़ी, ये काम की बात है. बड़ी हो तो माड़ी, छोटी हो तो माड़ी बोलते. बड़ी होती है बुजुर्ग तो माड़ी बोलते, एक प्राकृत गुजराती में अभ्रंश. और छोटी हो तो माता जी ऐसा. और छोटा हो बच्चा तो बाल गोपाल है कि नहीं. और पानी हो तो गंगा जल, अच्छा घर हो तो आश्रम, नहीं ऐसा ऐसा बोलो. आप जानते हैं 40 साल से पहले से इननेट तो मैंने. अच्छा दूसरा कि इननेट पहले से एक अनंत स्वच्छ महाआकाश है ना, अनंत स्वच्छ आकाश जो है ना, उसमें जरा भी कभी अलग नहीं पड़े. मैंने ये है वही नहीं, अनंत स्वच्छ आकाश ही है ऐसा. मैंने अनुसंधान शब्द नहीं आएगा तो द्वैत आएगा. अनुसंधान नहीं, अनंत स्वच्छ महाचिदा का अनंत शांति है, ये एब्सोल्यूट एब्स्ट्रैक्ट ऐसा अनंत स्वच्छ मन. तो मन आप इसको देखते हैं और ये आकाश को देखता है, तो आप भी नहीं है, ये भी नहीं है, आकाश दिखना भी नहीं है, और अनंत स्वच्छ महाचिदाकाश अनंत शांति यही है. और ये प्रकाश ये है अनंत स्वच्छ महाचिदाकाश अनंत शांति, ये प्रकाश है. तो आप ऐसा हम कैसे देखते हैं, या आप बोलते हैं हम सुनते हैं, ये गलत है ऐसा. ये हम नहीं है, आप ये आप नहीं है, हम बोलते हैं आप सुनते हैं वो भी नहीं है. और अनंत स्वच्छ महाचिदाकाश अनंत शांति है, नो अपीयरेंस भी है ऐसा. तो जीसस ने कहा उससे करोड़ों करोड़ चालू रहते हैं, उसकी परंपरा चालू ही रहती. क्योंकि हम छोटे थे तो हाईवे पर, सिटी के हाईवे पर हम खड़े थे छोटे, तो नामदार पोप पोल निकले. पोप पोल तब बस्ती आपकी पृथ्वी की 3 अरब थी. उन्हें 3 अरब माने 300 करोड़ थी बराबर. तो नामदार पोप पोल ऐसे ऐसे सबको ब्लेसिंग्स करते थे. व्हीकल में खड़े ऐसे लंबा जब्बा वाइट पहनते ना, टोपी पहनते ऐसे ऐसे करते. हमने नजदीक से दर्शन किया. और एक ऐसा न्यूज़ में ऐसा आया कि अभी वर्ल्ड की 1/3 पॉपुलेशन वो उसके अनुयायी है जीसस. 1/3 मैंने उसके तब एक फिगर ऐसा आया था कि नामदार पोल जो है उनके जो गुरु है, तो उनके 90 करोड़ उनके अनुयायी है, 90 करोड़. तब भारत का नंबर मानने वाला जो है इधर आपका देवो देवी तो मानने वाला 5वां 6ठा नंबर था ऐसा हम जाते. ऐसा हम जाते आपका नंबर, आप जो मानते हैं ये देव है, ये देवी है, ये भगवान है, ये प्रभु, तो उसका नंबर 5वां 6ठा था. इसलिए ये सब अपीयरेंस से है. रियलिटी से देखो तो परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं. अभी दूसरा आप ऐसे कहें कि आप वो रह के उसमें अलग न रह के, आप नहीं है ऐसे रह के, और वही रहा है ऐसे, आप प्रकाश रहे, तो वही ये शब्दान्वित हुआ है.
परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति ही वो शब्द नहीं है, विचार वाणी शब्द नहीं है, लेकिन वही शब्दान्वित हुआ है विचार वाणी शब्द कि परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति। जैसे कि कोई पर्सन होता है तो वो अपने को शब्दान्वित करता है कि मैं आई एम, ऐसा कहते हैं कि नहीं, तो वैसे वो अपने को शब्दान्वित करता है कि परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति। अभी आपको कैसे रियलाइज करना है कि परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति। नहीं तो आप द्वैत रखेंगे ये मैं हूँ और आप प्रभु है तो नहीं, उसका ये नहीं आएगा, निवेड़ा नहीं आएगा। निवेड़ा बोलते क्या बोलते हैं, निवेड़ा नहीं आएगा, ये अंत नहीं आएगा। ऐसा आपको सीधा यही रहना है कि महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश संपूर्ण प्रकाश, महाचिदाकाश स्वसंवेद्य शरद निर्विकल्प। शरद निर्विकल्प में जान लेना चाहिए कि भाई मैं नहीं हूँ, जगत नहीं है और कोई नहीं है, कुछ नहीं, कुछ होता नहीं है। और फिर महाचिदाकाश सब कुछ है, मैं कुछ नहीं है, तो महाचिदाकाश परम कैवल्य परम शांति। अभी आप रियलाइजेशन में यही रियलाइजेशन है तो इतने क्लियर हो गए कि आप नहीं है और महाचिदाकाश है, ये सारा आनंद स्वच्छ महाचिदाकाश आनंद शांति है। तो उसका प्रूफ क्या, आप रियलाइजेशन में एग्जैक्ट है तो वो जो परम शांति है वो जितनी ज़्यादा तो उतना आपका रियलाइजेशन क्लियर, आपकी अनुभूति क्लियर। नहीं तो मुझे अनुभूति है तो भी आप क्लियर नहीं है, तो वही है और वही परम शांति है तो आप नहीं है, कोई नहीं है, कुछ नहीं, कुछ होता नहीं है। तो आप तो भी जीसस कहा वैसा नहीं कि वो और मैं एक है इसलिए मैं वो है, तो अभी ये चल रहा है अहम ब्रह्मास्मि, तो खोटा है, उसमें अहम है ही नहीं। और ये शब्द मनुष्य ने बनाया, मनुष्य में से आए, हमें कभी ऐसा अंदर भी नहीं आया, अपनों में भी नहीं आया। समझ में कैसा कहा, अंदर कैसा कहा कि मन अंदर परमात्मा में पूरा लगाने से अंदर से प्रेरणा आती है, लेकिन परमात्मा शब्द है तो वही रिंगटोन मैंने अलार्म, परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति। ऐसा नहीं तो ऐसा कि चलो विश्राम में है तो प्रकाश, तो प्रकाश में से प्रकाश शब्दान्वित होता है कि हूँ पोते अनंत पूर्ण पर ब्रह्म छूँ, मैं स्वयं अनंत पूर्ण पर ब्रह्म हूँ। फिर ये दूसरा लाने के जगह का है, तो आप कहाँ खर्चा करते हैं, आप कहाँ पीछे रहते हैं, पीछे पड़ते हैं, नहीं उसमें एग्जैक्ट एक ही है, वो ही है और फिर दूसरा कुछ नहीं है, दूसरा कुछ होता ही नहीं है। ऐसे आप नहीं रहते हैं तो आपका श्रवण फेल हो जाता है। आप सुनो तो ऐसा होना चाहिए कि बस जो है सो है, महाचिदाकाश ऊपर कुछ नहीं, उसके सिवा कुछ नहीं, उसमें दूसरा कुछ नहीं, उसमें होता कुछ नहीं, महाचिदाकाश ही महाचिदाकाश जो है सो है। तो ये शब्द नहीं रहना चाहिए, आप नहीं रहना चाहिए, दूसरा नहीं रहना चाहिए, कुछ भी आकाश से पृथ्वी, कोई भी ईश्वर माया जी के कोई भी कोई नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ होता नहीं। और महाचिदाकाश ही महाचिदाकाश जो है सो। फिर सत्शास्त्रों तो मनुष्य ने जो आप जिसको पहुंचा हुआ महात्मा कहते हैं, उसने अपनी बुद्धि से उसको प्रकाश किया है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है कि प्रकाश ही प्रकाश है, दूसरा प्रकाश नहीं है और दूसरा प्रकाश करने वाला भी नहीं है। मन योग वशिष्ठ सतनाथ में शिरोमणि है तो और वशिष्ठ सदगुरु है, तो सत्शास्त्र और सदगुरु भी नहीं है और महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश संपूर्ण प्रकाश, ये प्रकाश है। सारा अनंत प्रकाश ही सारा अनंत प्रकाश, अनंत प्रकाश, अनंत आनंद, अनंत शांति। अभी आपको ऐसा लगा हाँ आप बोलते हैं हमको तो आपसे जानने मिला, ऐसा विकल्प लाएंगे ना तो पता ही नहीं लगेगा, द्वैत लाएंगे, रिवर्स लाएंगे, कुछ भी तो आपने सुना ही नहीं, बराबर सुना नहीं, और ये सुनना भी नहीं है, जानना भी नहीं है, अनुभव करना भी नहीं है, और जो है सो है ऐसा। तो मनुष्य एकदम सरल होता है ना, सीधा साधा सच्चा चोखा खुला आर पार, जैसे परम चिदाकाश है तो परम चिदाकाश सच्चा चोखा खुला आर पार, तो ऐसा मनुष्य होता है ना आर पार, तो वो नहीं होता है और कोई नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, तो ऐसा होता है ना। तो फिर वो तो रहा ही है, ये मनुष्य वो नहीं रहा है, वो ये मनुष्य नहीं रहा है, लेकिन वो ही रहा है,
परम चिदाकाश ही रहा है। कोई वो अपने में दूसरा नहीं होता है, वो अपने में दूसरा नहीं है, दूसरा नहीं होता है, और दूसरा होकर वो परम चिदाकाश नहीं रहता है कि मैं परम चिदाकाश साक्षात्कार करके, अनुभूति करके, दर्शन करके अभी मैं परम चिदाकाश रहा हूँ, तो और नहीं है। परम चिदाकाश ही परम चिदाकाश रहा है, दूसरा न हुआ है, न है, न होगा, न होता है। बोलो क्लियर है? हाँ, ऐसा એટલે પ્રભુ પ્રભુ કરીને કોઈને ઓળખવું થોડો થોડો ઠેકાણા હોય તો ઠીક, અને કેવું હોય તો બધાને પ્રભુ કહેવાય, પણ એમ કે આ થોડો વધુ પ્રભુ છે ને આ થોડો ઓછો પ્રભુ છે, એકદમ સાવ એકદમ જે વર્લ્ડમાં વિશ્વ વિભૂતિ હોય એ પણ એક છે, અને वो भी वही है, और एक चींटी हो कीड़ी तो वो भी वही है, एक तृण हो, एक मिट्टी की रज हो तो भी वही है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ ये बड़ा प्रभु है और ये तो मिट्टी की रज है, ये चींटी एक तृण है, नहीं। प्रभु बोलो तो सब प्रभु, અને માયા બોલો તો सब माया, मैंने आभास, एपियरेंस, कल्पना या भ्रम या मोह। तो माया बोलो तो सब माया, मैंने कुछ नहीं, और प्रभु बोलो तो सब प्रभु, मैंने सब कुछ। प्रभु बोलो तो सब कुछ, और माया बोलो तो कुछ नहीं। फिर नहीं इसमें थोड़ा प्रभु ज़्यादा है, नहीं इसमें माया कम है, नहीं इसमें प्रभु कम है, ना माया ज़्यादा है, तो नहीं, क्लियर नहीं हुआ है। 0-0 एग्जैक्ट होना चाहिए, परमाकाश महापूर्ण, महामाया महाशून्य, ऐसा आप पर 100% होना चाहिए। थोड़ा भी मिक्स रहेगा, ये मैं हूँ से चलेंगे तो खोटा पड़ेगा, और महाचिदाकाश सब कुछ है तो सच्चा पड़ेगा। महाचिदाकाश से जानो तो फिर दूसरा नहीं दिखेगा, जब तक मैं दिखता है तब तक मालूम नहीं पड़ेगा, और जब महाचिदाकाश दिखेगा तो मैं नहीं रहेगा, तब समझता कि हाँ महाचिदाकाश स्वयं महाचिदाकाश आखो એટલો પ્રકાશ છે, આખો આનંદ સંપૂર્ણ મહાચૈતન્ય પ્રકાશ છે, એટલે સમજે ખાલી આત્મનિયો ચાલો પેલા ભરત પ્રભુના બાળકો પણ આવે તેને ખબર પડી હતી સમિતમાં શું શું કેવું પૂછ્યું નહીં હોય તો પછી આ સંપૂર્ણ સત્ય એટલે તેવી રીતે વાત થઈ શકું છે। દુનિયાની મને ખબર નથી, પણ મારા બધા છોકરાઓ ખબર સત્ય એટલે એ લોકોને ખબર છે આ બાળકો કેવી રીતે એને તો આ બધા કેટલા મહિનો પડે કોને એ દિલીપ પ્રભુના બાળકો પણ ભરત પ્રભુના બાળકો બે ને દિલીપ પ્રભુના બાળકો પણ શું કરે એ પણ કોર્સ કરે છે 12મા પછી કોર્સ 4 વર્ષનો આવે એ પૂરો થઈ ગયો ના હજુ ચાલુ મોડા છે છેલ્લું વર્ષ થયું અને પેલાને એ તો 12મા પછી નીકળી ગયા નહીં કરી ના ભણવાનું બધી રાખ્યું ભણતા નહીં તો શું કરે મારે તો ગાયો હાચવી એવું કહેતું સાચે છે કે નહીં પછી પેલા બેબી એ તો કયો જતો લંડન 2 વર્ષ ભણ્યા ભણ્યા નોકરી કરી પછી આએ ત્યાં પાછું જવાનું અમેરિકા રમકડા બધા જુઓ અને એમાં બધા દાદા ખુશ થાય અમારા કુરકુરિયા જો અમે તો ના કહીએ જો નવાય જ નહીં ગુલામી કરવા અને અહીંયા આવ્યા તો પહેલી વાર જ સાંભળ્યું છે આ ના પણ ખ્યાલ તો છે પૂરેપૂરો ખ્યાલ ક્યાંથી ખ્યાલ હોય પૂરેપૂરો સંપૂર્ણ આમ ફર્યા કરતા હોય કુટીરમાં આવતા હોય થોડું કાયમ કુટીરમાં એટલે એમના અંદરનો ઉદ્ગાર શું હોય આ બીજા બધા જે ચાલે એ ખોટું જ હોય છે દેખાદેખી હોય એક મત પણ સંપ્રદાય પોતે ભગવાન થઈ જાય એવું બાકીમાં એવું નથી હતું બધું પરમાત્મા જ થયું એટલે સંપૂર્ણ સત્ય એટલે એ લોકો એવું કહે હા અચ્છા તો બીજા જે બીજાને માનતા હોય ધારો કે મોટા છે એના ઘેર છે ના છે એ લોકોને ખબર પડે એ ખબર છે શું આ સંપૂર્ણ એ સત્ય બીજા સંપ્રદાય વાળા સ્વામિનારાયણ મોટાના ઘેરથી છે હા એ શું કે ના પણ એ તો આ સત્ય છે એ પૂરી ખબર એ કે નહીં છે એ નહીં પણ ખબર ખરી અંદર બાકી હમણાં ભગવાન સર્વોપરી ના સર્વોપરી કરતી બેચા નાથો એવું કહેતા સત્કરના અમારા ભગવાન સર્વોપરી એ તો રમકડા જેવા એકદમ સંપૂર્ણ ભગવાન
તરવા હવે ત્યાંથી નીકળતા આંબોળ ગાડી નહીં જવા માટે એટલે પૂછ્યા કે આજ પ્રથા થઈ ગયો લેવાનું અમારે ત્યાં આવતા એટલે ખમોળી કે શું બનાવવાનું એટલે બાજરીનો રોટ કાઢી એટલે ખમોળી કે શીરો બનાવો એટલે બે ચાલુ કે બનાવો છો ને તમે બાજરીનો રોટલો કાઢી લેજો હું શીરો લઈ એ ખમોળી એ બધા પરમાત્મા એટલે બબા પર બોલતા અમે ગયા ને ત્યાં શીર કરતા છે એ સંપૂર્ણ ભગવાન એ બોલતા નથી એટલે માણસ દેખાય છે એ નથી સમજાય છે માણસ નહીં આ આખું જે વિશ્વ દેખાય છે આકાશ ને આકાશમાં સૂર્યચંદ્ર તારા દિવસ રાત ઠંડ ગરમી વર્ષા અને જે આકાશગંગા અને અનંત તારા એકદમ અનંત સૂર્યો અને અનંત બ્રહ્માંડો અને અનંત સોટી સ્થિતિ લય અનંત નામરૂપ એ દેખાય છે બધું દ્રશ્ય એ નથી અને મહાચિદાકાશ જ છે મહા ચૈતન્ય પ્રકાશ રૂપી આકાશ એમ આ સ્થૂળ છે ભૂતાકાશ એટલે સ્કાય ઓફ મેટર પછી સૂક્ષ્મ છે એ ચિત્તાકાશ એટલે સ્કાય ઓફ થોટ પછી કારણ છે એ માયાકાશ એટલે સ્કાય ઓફ એનર્જી અને પછી મહાકારણ છે એ ચિદાકાશ એટલે સ્કાય ઓફ કોન્શિયસનેસ ચૈતન્ય આકાશ આ ભૌતિક આકાશ પછી અંદર વિચાર સંકલ્પરૂપી આકાશ પછી અંદર શક્તિરૂપી આકાશ પછી અંદર ચૈતન્યરૂપી આકાશ સમજાય એમ છે ત્યારે તો પછી ચૈતન્ય આકાશ જે રીતે બરફ પછી જળ પછી વરાળ અને પછી આકાશ તો બરફ જળ અને વરાળ એ આકાર છે અને આકાશ છે એ વસ્તુ છે એટલે ભૂતાકાશ છે ભૂતાકાશ ચિત્તાકાશ માયાકાશ આકાર છે અને ચિદાકાશ વસ્તુ છે તો જે બધું ચિદાકાશ છે એવો અનુભવી ના રહ્યો હોય અને પોતે નો રહ્યો અને બીજું નો રહ્યો કેવી રીતે તો એ ભૂતાકાશ નો જોતો હોય પણ એ ચિદાકાશ છે જેમ કે બરફ નો જોતો હોય આકાશ છે જળ નો જોતો હોય આકાશ છે વરાળ નો જોતો હોય આકાશ છે એવી રીતે ભૂતાકાશ નો જોતો હોય ચિદાકાશ છે ચિત્તાકાશ નો જોતો હોય ચિદાકાશ છે માયાકાશ નો જોતો હોય ચિદાકાશ છે એવી રીતે બધું ચિદાકાશ છે કારણ કે બરફ એ છે જળ એ છે ને વરાળ એ છે આકારથી તમે ભેદ જુઓ છો પણ એમાં કોઈ આકાર નથી સમજાય છે કે નહીં અનંત એકરસ નિરાકાર મહાચિદાકાશ સમજાય એવી એટલે અનંત નિરાકાર પરબ્રહ્મ આકાશ પ્રકાશ એટલે સમજાય એટલે એને એવું ન હોય કે આ બરફ છે આ જળ છે આ વરાળ છે એને બધું આકાશ જ હોય એટલે એને એવું ન હોય કે આ ભૂતાકાશ છે આ ચિત્તાકાશ છે આ માયાકાશ છે એને બધું ચિદાકાશ છે પછી હવે એમ કે બધું ચિદાકાશ છે તો ધારો કે એને કીધું થેન્ક પ્રભુ અમે કીધું થેન્ક હિમ બરાબર થેન્ક થેન્ક હિમ તો એમ આવે અંદર કે અમે એનાથી એમાં જુદા એટલે આગવા અલગ બીજા નથી એટલે અમે નથી અને પ્રભુ જ છે એવી રીતે પણ હિંસકે કીધું એનો અર્થ કેવી રીતે આ લોકો પકડ્યા कि आई एंड माई फादर आर वन, तो मैं और प्रभु एक है ना, तो फिर जीसस प्रभु है, तो यहाँ ऐसा नहीं तो એટલે અનુયાયી હે તો એ રથનું ગત કરે એમ રાયનો પર્વત કરે વાતનું વત્તેસર કરે પણ અહીંયા એવું નથી જો હે સો હે ડાયરેક્ટ નો मीडिया 00 नो कॉम्प्रोमाइज प्रभु ही प्रभु है दूसरा प्रभु नहीं क्लियर प्रभु माने परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति ये भी यहाँ खुला है पूरा कि भाई प्रभु प्रभु करो तो आखू जगत तो प्रभु ने जाने कि प्रभु है पण ए कई रीते जाने कि ए पोते आ छे आ बधुं जगत छे अने पछी एनो सर्जनार करता दा मालिक माँ बाप बधुं त्वमेव माता च पिता त्वमेव एवी रीते तो एवी रीते प्रभु ने जाने ज्यारे अहींया प्रभु शुं छे कि प्रभु ज प्रभु छे बीजू कोई नहीं काई थतुं नथी तो ए प्रभु शुं छे तो परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति अनंत पूर्ण परम चिदाकाश पछी एमां शुं छे केटला छे तो के अनंत पूर्ण परम चैतन्य प्रकाश रूपी आकाश तो परम चिदाकाश एमां शुं छे परम शांति अनंत पूर्ण परम चिदाकाश परम शांति पछी ए केवा छे स्वयं सिद्ध एने कई सिद्ध करवा पण
સિદ્ધ થવા પણ નથી. સ્વયં સિદ્ધ, સ્વયં પ્રકાશ, એને પ્રકાશનાર બીજો પ્રકાશ નથી. સ્વયં પૂર્ણ, એને પૂર્ણ કરનાર એમાં બીજી વસ્તુ નથી. સ્વયં પૂર્ણ, સ્વસ્વરૂપ, એને કંઈ સ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરવાનું નથી, પોતે જ સ્વસ્વરૂપ છે. तो यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है. शून्यभास अनंत कोटि महाकल्पो है ही नहीं. आ अनंत सृष्टि स्थिति प्रलय, अनंत जगतो અને એના અનંત સૃષ્ટિ સ્થિતિ પ્રલય है ही नहीं, છે જ નહીં. તો કે અનંત મહાસાગર જ છે, અનંત મોજા, અને એના સૃષ્ટિ સ્થિતિ પ્રલય છે જ નહીં. એ આભાસ છે અને અનંત મહાસાગર છે એ પરમ સત્ય, परम चिदाकाश, परम सत्य, परम तत्व. जो वेव्स, लहर, करंट, उसका उत्पत्ति स्थिति लय, अपियरेंस है ही नहीं, और अनंत इन्फिनिट ऑसम अनंत महासागर ही है. ये अनंत संपूर्ण महाचिदाकाश महासागर. क्लियर? आद्य परब्रह्म सद्गुरु देव की जय. ओम श्री परमात्मने नमः. श्री योग वासिष्ठ महारामायण. रामकृष्ण परमहंस द्वैत है. कैसे कि माँ કે હું ઘર તું ઘરમાં રહેનાર, હું ગાડી તું ડ્રાઈવર છે ને, એ બધું છે ને. હું યંત્ર તું યંત્ર ચલાવનાર, જેમ બોલાવે તેમ બોલું, જેમ ચલાવે તેમ ચાલું, જેમ કરાવે તેમ કરું. એટલે એમાં હું એને અનુસંધાનમાં પોતાને જોડી અને પોતાની સચ્ચાઈ થોડી ઠરાવે. એટલે અનુયાયીઓ એને પકડાય. ત્યાં એ જ છે. અમે ક્યાં ગાડીને ડ્રાઈવર ક્યાં જુદા છે ને ઘરને ઘરમાં રહેનાર ક્યાં જુદા છે એમ કરી. પણ અહીંયા એવું નથી. ગાડી એ નથી, ડ્રાઈવરે નથી, ઘર નથી, ઘરમાં રહેનાર નથી, યંત્ર નથી, યંત્ર ચલાવનારે નથી. અને महाचिदाकाश ही महाचिदाकाश जो है सो तो थोड़ું એમને લાગે કે આ થોડું અતિશયોક્તિ છે. અને એમ લાગે તમે જગતમાં રહ્યા હોય, જીવ ભાવથી જગત ભાવથી રહ્યા હોય, આપણે માટે તો આ આપણે એ ક્યાં દેખાય છે એમ, આપણે ડ્રાઈવર ક્યાં દેખાય છે. એટલે આ ગાડી છે ડ્રાઈવર છે, આ ઘર છે ઘરમાં રહેનાર છે, અને યંત્ર છે યંત્ર ચલાવનાર છે. જો દ્વૈત આવે જ છે ને પછી નાહમ નાહમ તું ही कोई सोहम करे तो पण ये द्वैत થાય ને, द्वैत होता है. हाँ, और ये तो जो है सो है, ये है ना. प्रकाश फूल है. आकाश જેવો આખો અનંત ચૈતન્ય પ્રકાશ છે. જો આ एक्सप्रेशन કેવું છે. પછી आकाश में जैसे काली टिप की कलंक कभी संभवित नहीं, वैसे चिदाकाश में अहम रूपी काली टिप की कभी संभवित. आकाश में जेम काळो टप्पो कलंक संभवित नहीं, एम चिदाकाश में अहम रूपी काळो टप्पो हूँ. काळो टप्पो कभी संभवित नहीं. काळो टप्पो क्या है અને બીજું દેખાય તો એમાં નથી. વાદળ દેખાય, ધૂળ દેખાય, ધુમાડો દેખાય, કે અણુશક્તિના પ્રયોગો દેખાય, કે વિશ્વયુદ્ધ દેખાય, पर आकाश में किसी का स्पर्श या संबंध नहीं है. कुछ भी दिखता हो तो एपियरेंस है, और आकाश निरंजन, निराकार, निर्विकार, अनंत संपूर्ण, अनंत सर्वत्र. मैं अमाप सच्चिदानंद निरंतर परमाकाश हूँ. परमाकाश कहता है मैं अमाप सच्चिदानंद निरंतर परमाकाश हूँ. फिर उसमें कोई अलग नहीं, कुछ अलग नहीं, कुछ होता नहीं. ऐसा जब तक ऐसा वसिष्ठ क्या कहना है, वो जानने में आता है तब कोई मोह नहीं रहता है, उसका बोध हो जाता है. ये तत्व बोध, ये परम चिदाकाश बोध, ये बोध हो जाता है तो कोई मोह नहीं रहता है. और कोई मोह रहता है तो ये बोध नहीं होता है. शब्द से बुद्धि से जानना, वो जानना नहीं है. और तो किसी ने जाना, मान लो वसिष्ठ ने जाना, तो वसिष्ठ की कल्पना भी नहीं है, ऐसा बोध है. और वो बोध है वो परम चिदाकाश है. नहीं समझे? मतलब आप ऐसा कहो कि वसिष्ठ है तो वो पूर्ण बोध है. वसिष्ठ तो वो पूर्ण बोध क्या है? वो पूर्ण जो परम चिदाकाश है वो पूर्ण बोध है, और वसिष्ठ नहीं है. नहीं समझ पाते हैं? पूर्ण बोध है, कहीं पूर्ण बोध है तो व्यक्ति का पूर्ण बोध नहीं है, परम चिदाकाश पूर्ण बोध है. समझे? ये पूर्ण चैतन्य है, वो पूर्ण बोध है, और वो व्यक्ति उसमें नहीं है. तो ये सुनने वाले गफलत कहाँ करते हैं
वो व्यक्ति को बुद्धि की हाँ ये पूर्ण ज्ञानी है, ये परम ज्ञानी है। तो अपीयरेंस से जानने से सच्चा जानने में नहीं आता है। जैसे कि पूर्ण ज्ञान या परम ज्ञान, तो वो परम चिदाकाश है, वो परम ज्ञान है, वो पूर्ण ज्ञान है। और उसमें वो कोई पूर्ण ज्ञानी और परम ज्ञानी, ये बोलते हैं ना परम तत्ववेत्ता या तत्ववेत्ता या जीवन मुक्त या ईश्वर साक्षात्कारी या आत्म साक्षात्कारी या निर्विकल्प समाधि सिद्ध या सम्यक प्रबुद्ध या विश्व विभूति या कोई जगत गुरु, कोई नहीं है, कुछ नहीं है, कोई होता नहीं। समझाते हैं? क्लियर है क्या? सेपरेट आइडेंटिटी करके कुछ नहीं है, सेपरेट आइडेंटिटी करके कुछ है नहीं, केवल परम चिदाकाश। सेपरेट आइडेंटिटी कुछ नहीं, क्या कुछ नहीं है? सेपरेट आइडेंटिटी, सेपरेट आइडेंटिटी, सेपरेट नथिंग, जीरो जीरो। क्लियर है? कैसा रहा? अनंत प्रकाश, अनंत आनंद, अनंत शांति, ऐसा अनुभूति एक आती है ना, वो अनुभूति वो है। अनुभव करता नहीं, अनुभव ये नहीं है, अनुभवी अनुभव, अनुभवी त्रिपुटी नहीं है। अनुभवी मैंने अनुभव करने वाला उसका, और उसका अनुभव और अनुभव की वस्तु विषय, वो त्रिपुटी नहीं है। और वो अपने को महाचिदाकाश खुद रहा है, दूसरा नहीं। महाचिदाकाश ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। महाचिदाकाश अनंत पूर्ण सार्वभौम सत्ता, महाचिदाकाश महाचक्रवर्ती महासाम्राज्य। क्लियर है? महाचिदाकाश स्वसमेध्य सहज निर्विकल्प, तो अपने से अनुभव में आने वाला स्वसमेध्य અને सहज। तो महाचिदाकाश अनुभव महाचिदाकाश, जैसे सदाशिव ने कहा कि चैतन्य भिन्न, हाँ, अपना दूसरा अनुभव नहीं है। चैतन्य का अपना, चैतन्य का अपना, चैतन्य भिन्न, चैतन्य का अपना, दूसरा अनुभव नहीं। मैंने चैतन्य ही अनुभव है, तो मेरा अनुभव नहीं ऐसा। मान लो कि अभी निर्मलता, शीतलता है, पवित्रता है, आनंद मंगल है, शांति है, तो वो जो है वो पवित्रता, निर्मलता, आनंद मंगल, शांति है। तो मेरा अनुभव है कि ये निर्मलता, शीतलता है, ये प्रकाश है, ये आकाश है, ये सब, ये हवा है, ये निर्मलता, शीतलता है, ये पवित्रता है, ये आनंद मंगल है, ये सुबह है, अच्छी सुबह है। तो ये मेरी अनुभूति नहीं, वो है, वही अनुभूति है। वो अनुभूति वो, मैं ना हूँ तो भी वो है। तो वो अनुभूति वो सूर्यनारायण भगवान है, ऐसा है ना, समझ लो। तो वो अनुभूति वो, फिर ये भी स्फूर्ति है, ये भी स्फूर्ति है, स्फुरण। ऐसा जैसे लहर दिखती है तो लहर अनुभूति, लहर, समझ लो। फिर लहर भी महासागर है, तो ये स्फुरण है, तो उसकी भी सत्ता, प्रकाश, तो वो महाचिदाकाश। ये सारी वस्तु है प्रत्यक्ष साक्षात, तो मैं के बगैर है, मैं रहित है, मैं अपीयरेंस है। तो वैसे मैं अपीयरेंस है वो नहीं है, वैसे ये सब जो दिख रहा है वो भी अपीयरेंस है वो नहीं है, टोटलिटी में, समझे ना। और फिर वो सारा रियलिटी है महाचिदाकाश। तो उसमें मैं महाचिदाकाश कहाँ से हो सकता है? इम्पॉसिबल। तो ऐसे मतपंथ संप्रदाय व्यक्ति बड़ा होता है। मुझे महाचिदाकाश अनुभूति है, दर्शन है, साक्षात्कार है, परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, और मैं उससे अलग नहीं हूँ। उसमें ये सब उसमें अलग नहीं है, तो मैं और ये सब भी वही है नहीं। भगवान बहन को तो अच्छा व्यापार चलेगा, दुकान अच्छी करेगी। ये समझते नहीं ना ऐसा। अरे अभी जब रूढ़ हो गए, पकड़ गए तो ये गिनेंगे, हाँ, क्योंकि मैं बड़ा हो गया ना, वो कुछ नहीं है, वो नहीं समझना चाहिए। और वो सिर्फ तो ऐसा कहते हैं ये अनंत जो महाचैतन्य प्रकाश होती, जो महासागर है, जो पूर्ण है, ऐसा व्यापक है, समान है, एक, तो बस वही है दूसरा। तो उसमें करोड़ों ब्रह्मा विष्णु महेश बुद्ध के समान उत्पन्न होकर लीन हो जाते हैं, करोड़ों जगत हो बुद्ध के समान उत्पन्न होकर लीन हो जाते हैं। फिर थोड़ा मैं बस ये मैं थोड़ा पैसा आया, थोड़ा कुछ बनाया, थोड़ा चढ़ाया, चलाओ, ये ज्ञान नहीं है, ये विवेक नहीं है, विनय नहीं है, नम्रता नहीं है, शांति नहीं है, सब भ्रमित रहता है। ये मनुष्य यदि वशिष्ठ को प्रकाश से सुने
तो वो अंदर परमात्मा में शांत परम पिता का परम ज्योति अखंड ज्योति में, महान पिता का स्वयं प्रकाश संपूर्ण प्रकाश में, पूर्ण ब्रह्म अनंत तेजगण अनंत चिदगण में, परमाकाश केवल अनंत शुद्ध तेजगण में, परमाकाश अखिल आत्मा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा में अंदर शांत 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 होता जाता है। तभी उसने सच्चा सुना है, सरल श्रवण किया है। सरल श्रवण किया है उसका यह लक्षण है कि अंदर वो जो आकाश जो आखो अनंत चैतन्य प्रकाश से ये अंदर है एमा शांत था मानस, उसमें शांत होता जाता है अंदर अंदर अंदर, और एकदम अंदर पूरा नहीं रहता है वो, तो वो है परम चिदाकाश परम पद पूर्ण विश्रांति, महान चिदाकाश परम कैवल्य परम शांति, पर ब्रह्म परम शांति स्वानुभूति तत्वसार। ओके, क्लियर होता है? अंदर बाहर भटकना नहीं है, भ्रांति में भटकना बाहर कि मैं ऐसा, मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा हूँ, मेरा ऐसा चल रहा है, ऐसा कर रहा हूँ। देखो लोग मेरे पैर में पड़ रहे, फल फूल रुपया मिठाई ढेर ढगला हो जाता है। देखो मुझे लोग परमात्मा मानते हैं, वितराग ब्रह्मनिष्ठ शब्दों, वेदों उपनिषदों ब्रह्मसूत्र गीता के शब्दों, शब्द है वो ज्ञान नहीं है, शब्द है वो प्रकाश नहीं है, और प्रकाश है वो कोई दिखावा नहीं है, अपीयरेंस नहीं है। जो दृश्य है वो प्रकाश नहीं है, और प्रकाश कोई दृश्य नहीं है, प्रकाश कोई व्यक्ति नहीं है, कोई व्यक्ति प्रकाश नहीं है। अनंत चैतन्य प्रकाश, अनंत चैतन्य शांति, शांति है, सब कुछ है, शांति नहीं, कुछ नहीं है। आई एम दिस और आई एम दैट, मैं ये हूँ या मैं वो हूँ, मैं ऐसा हूँ या वैसा हूँ, मैं सब जानता हूँ, मैंने सब किया, करता हूँ, करूँगा, वो कुछ नहीं। एकदम क्लियर है। हाँ, उसने क्या कहा? कोई आइडेंटिटी, सेपरेट आइडेंटिटी, तो फिर सेपरेट ही हो गया वो। यदि सेपरेट आइडेंटिटी हो तो उसमें परमात्मा में सेपरेट हो गया, सेपरेट कि भाई परमात्मा से मैं अलग हूँ, तो फिर शांति होगी। परमात्मा में परमात्मा ये है, दूसरा कोई नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ होता नहीं है, तो खुद नहीं रहता है। जैसे रामकृष्ण परमहंस ने कहा, मीठाની પુતળી દરિયામાં આપવા ગઈ, ભાઈ એવી ચોકડી ગઈ, ખબર જ આવ્યા નહીં સમુદ્ર કેટલો ઊંડો છે। એટલે અહમ રૂપી મીઠાની પુતળી એ પરમ ચિદાકાશ રૂપી મહાસાગરને માપવા ગઈ, ગઈ એવી ઓગળી ગઈ, ખબર જ આવ્યા નહીં સમુદ્ર કેટલો ઊંડો છે, અને પુતળી કિનારે ઉપરી મહાસાગર માપી લીધો। હા, સારું કરી લો, આટલો પોતે આટલી એટલે મહાસાગર અનંત, ઇનફાઇનાઇટ, અનંત। બોલો, બે વસ્તુ કીધી, અનંત ચૈતન્ય પ્રકાશ, અનંત ચૈતન્ય શાંતિ, એમાં બધું આવી ગયું। અનંત चैतन्य प्रकाश, अनंत चैतन्य, प्रभु बोले, भगवान बोले, ईश्वर बोले, ब्रह्म बोले, आत्मा बोले, चिदाकाश बोले, सच्चिदानंद, कुछ गॉड बोले, कुछ भी न बोले, उसका कोई नाम नहीं है, लेकिन वो एकदम खुला है कि वो क्या है, तो अनंत चैतन्य प्रकाश, अनंत चैतन्य शांति। शांति है, सब कुछ है, शांति नहीं, कुछ नहीं। अभी शांति है तो क्या, कैसे, एक इसका अपीयरेंस सापेक्ष करेंगे तो शांति है, तो अपीयरेंस सापेक्ष माने अपीयरेंस का कुछ नहीं, अपीयरेंस कुछ नहीं है, तो ये अपीयरेंस का मैं है और ये जगत है, तो वो परम शांति है। अनंत चैतन्य प्रकाश, अनंत चैतन्य शांति, बराबर है। तो ये मैं और जगत कुछ नहीं है, तो वहाँ ये तो है ही अनंत चैतन्य प्रकाश, अनंत चैतन्य शांति। नहीं समझ में आया? और ये थोड़ा भी है, थोड़ा बहुत, कितना भी, दरेक का, हरेक का, ये मैं हूँ, ये जगत है, तो कुछ नहीं समझे। अनंत चैतन्य प्रकाश, अनंत चैतन्य शांति, वो तो वही है, उसमें तो दूसरा कुछ नहीं है, दूसरा कुछ होता नहीं है। नहीं समझ आता है? कोई नहीं है, कुछ नहीं, कुछ होता नहीं, वो तो है ही, लेकिन ये अपीयरेंस सापेक्ष वही है,
ऐसा हो ही रहा है, दूसरा कुछ नहीं रहा है। तो कहाँ, जहाँ मैं कुछ नहीं है, जगत कुछ नहीं है, तो वहाँ वो ही रहा है। और ये रखो तो भी ये कुछ नहीं है और वो ही रहा है। मैं और जगत ये भ्रम रखो, कल्पना रखो, तो भी मैं और जगत ये भ्रम कुछ नहीं है। और अनंत चैतन्य प्रकाश, अनंत चैतन्य शांति। क्लियर है? नहीं, ये रखो या न रखो, समझना है? चक्री तरंग फैन बुद्ध दिखे या ना दिखे, वो कुछ नहीं है। ये समझना है? वो भाषे या ना भाषे, अपियर या नो अपियर, नो अपियरेंस, है ना? तो महासागर महासागर है, एक महागीता का महासागर, महा चैतन्य प्रकाश रूपी महासागर है ना? क्लियर? एब्सोल्यूट है ना? जरा भी विवर्ड या दृश्य या अपियरेंस या इमेजिनेशन या रिफ्लेक्शन या प्रोजेक्शन या इल्यूजन या डिल्यूजन या हेल्यूसिनेशन है कुछ? ये क्या है? परम प्रकाश, परम आनंद, परम शांति है कि नहीं? क्यों लोगों को शांति नहीं है? ये मैं हूँ, ये मेरा है, बस मरो। वो प्रभु जी पूछते हैं ना, तो क्या डिफरेंस है, कोई दूसरा बोले शब्दों से बोले, तो प्रभु जी कल वो आनंदी का तत्व बहुत सुन रहे थे, वो मुझे बात हो रही थी, वो विठल को मानते थे। प्रभु जी कह रहे हैं कि देखो विठल सो रहा है और कोई महात्मा होता वहाँ पर, कोई बोलता वहाँ पे, कोई आमंत्रित करके वहाँ बुलवाते, तो ये बोलता विठल ही वहाँ चिदाकाश है, विठल ही सब कुछ है। लेकिन प्रभु जी क्या कह रहे हैं, विठल कुछ नहीं है, केवल वहाँ चिदाकाश है। तो सत्य के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, केवल सत्य ही सत्य है, मैं कुछ नहीं हूँ और दूसरा कुछ है ही नहीं। एक और शब्द था क्या, पावली पावली माऊली मावली, तो वो मावली पे जाते थे ज्ञानेश्वर, उन्हें वो को सब वो लोग जिसको संत मानते हैं उसको मावली कहते हैं। मावली माने माँ, मदर, वहाँ माता टेकते थे। माता, माता का भाव है, मातृभाव। तो वो सेपरेट आइडेंटिटी मानकर और दूर ही तो जाएगा। फिर उसे वो माचिदा का परब्रह्म परमात्मा कहते हैं, ऐसा। बस वही सब में ऐसा, जो मतपंथ संप्रदाय होगा तो उसमें वो कंठस्थ हो गया पक्का, और इसको बराबर पक्का करेगा दृढ़, ये छोड़ने का नहीं, यही पकड़ के रखने का, समझा दे? तो वो अपियरेंस से ही रहता है और रियलिटी में उसका बोध नहीं होता है। रियलिटी बोध हो जाए तो वही नहीं रहता है और दूसरा देव भी नहीं रहता है। दूसरा जो इसको बोलते कि ये देव है, ये संत है, तो वो भी ये भगवान है, ये प्रभु है, कोई नहीं है, कुछ नहीं, कुछ होता नहीं है। परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। तो उसमें क्या है? अनंत पूर्ण परम चिदाकाश, परम शांति है कि नहीं? वो कैसा है? स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकृत, दूसरा कोई स्वयं सिद्ध है नहीं। कोई चक्रित तरंग फैन बुद्ध स्वयं सिद्ध नहीं, महासागर स्वयं सिद्ध है। कोई अपीयरेंस स्वयं प्रकाश नहीं है, महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश। कोई अपीयरेंस पूर्ण नहीं है, महाचिदाकाश पूर्ण है। और कोई अपीयरेंस स्वरूप नहीं है, तत्व नहीं है, सत्य नहीं है। महाचिदाकाश सत्य है, तत्व है, वो पूर्ण है, अनंत है, अनंत व्यापक समान पूर्ण एक रूप है कि नहीं? और अनंत व्यापक अवैयक्तिक सार्वत्रिक, लेकिन इम्पर्सनल सुप्रीम रियलिटी रनिंग इन एंड थ्रू ऑल। विवेकानंद ऐसा कहते हैं, सुप्रीम रियलिटी है ना, रनिंग इन एंड थ्रू ऑल, सब में। और याज्ञवल्क्य ने भी श्रुति में ऐसा कहा कि गार्गी ने पूछा ये सब किसने उत्पन्न है? तो याज्ञवल्क्य ने कहा आकाश में अंतर्यामी माने ईश्वर, वो किस में उत्पन्न है? वो ब्रह्म, ऐसा कहा। गार्गी बोली इससे बड़ा कोई ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्मवेत्ता नहीं है। पहले जनक ने ऐसा कहा, सब विद्वानों की सभा थी, पंडित हो, सब तत्वज्ञानी हो, फिलोसोफर, तो का जो सबसे बड़ा ब्रह्मज्ञानी होगा तो उसको ये 1000 गायों और उसके सींग में भी सब सोना मोहर अमुक वेट की, तो ये वो ले जाए, तो सब प्रश्नों का उत्तर दे, सबसे बड़ा ब्रह्मज्ञानी हो। तो उनसे तो याज्ञवल्क्य ने तो अभी प्रश्नोत्तर भी नहीं हुआ,
और उसके शिष्य को कहा ले जाओ गाय अपना आश्रम में ले जाओ। जब सब पंडित बोलने लगे विद्वान, अरे अभी तो प्रश्नोत्तर नहीं हुआ है, सब गाय अभी ले जाने के पहले से पूछो नहीं कौन मांगे, सबका प्रश्न का उत्तर दे दिया उसने। लास्ट में गार्गी बोलती है अभी मैं परीक्षा मैं पूछूंगी 3 प्रश्न, उसका उत्तर बराबर देंगे तो फिर इससे बड़ा कोई ब्रह्मविद्ता नहीं है, उपनिषद में ऐसा है। तो फिर उसने पूछा ये सब किसमें ओतप्रोत है? तो बोले आकाश में। आकाश में अंतर्यामी ईश्वर। फिर अंतर्यामी किसमें ओतप्रोत है? ऐसा करके तो ब्रह्म में। फिर ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं है ऐसा, माने ईश्वर भी दूसरा नहीं है, समझ आते हैं, और आकाश माने दूसरा नहीं है, और उसमें जो सब है वो भी दूसरा नहीं है, और सगुण ब्रह्म से स्वयं ब्रह्म से केवल ब्रह्म माने संपूर्ण ब्रह्म है, स्वयं ब्रह्म है, केवल ब्रह्म। तो धनंजय प्रभु एक और पूछ्યું જો એક મને આ નર્મદા મૈયા માતાજીએ આ યોગવાસીનો લાભ અપાયો અને રેગ્યુલર આવતા આ પેલા મહેશ પ્રભુ એના ચિરંજીવ હવે આવે છે એટલે એને પૂછ્યું કે આનો સાર શું મિલતો તમે સાર કેવો હતો શોર્ટમાં? તો કે સગુણ બ્રહ્મ છે, સ્વયં બ્રહ્મ છે, કેવળ બ્રહ્મ છે। બ્રહ્મ કયો, આત્મા કયો, ચિદાકાશ કયો, ચૈતન્ય કયો, સચિત આનંદ કે કંઈ શબ્દ નથી। અમારે એમ કેવું હોય કે તમારે છેલ્લો શબ્દ કેવો હોય તો તમે પ્રકાશથી જો કયો છેલ્લો શબ્દ ટોચનો કે જેમાં બધું જ સમાયેલું છે એ કેવું હોય, લાસ્ટ શબ્દ બોલો આખરી અંતિમ, મને અલ્ટિમેટ રિયાલિટી, રિયાલિટી ઇન ટોટાલિટી, અંતિમ સત્ય, સત્ય સંપૂર્ણ તમે કહો તો हम कहेंगे प्रकाश, लाइट, अनंत, सर्वत्र, नित्य, पूर्ण, परम दिव्य ज्योति, इनफाइनाइट, ओमनी प्रेजेंट, अनंत, सर्वत्र, नित्य मने इटर्नल, અને પૂર્ણ મને એબ્સોલ્યુટ, અને પરમ દિવ્ય જ્યોતિ મને सुप्रीम डिवाइन लाइट। और वो जो दिल्ली में जो चीफ जज थे 31 के पैनल होते हैं उसमें से एक थे सुभाष रेड्डी, वो उड़ीसा के थे ना, उसने कहा दिस टाइप लाइट नेवर सीन, निरपेक्ष पढ़ के तो सुना ना, हाँ उसने ऐसा कहा दिस टाइप लाइट नेवर सीन, उसने भी लाइट शब्द यूज, प्रकाश, ये सारा अनंत संपूर्ण महाचैतन्य प्रकाश है, सारा अनंत संपूर्ण महाचैतन्य प्रकाश है। ये सोचना कहना सुनना नहीं है, याद रखना भूलना नहीं है। और ये प्रकाश क्या है? तो ये अनंत प्रकाश, अनंत आनंद, अनंत शांति, ऐसा क्लियर है? श्री योगवासिक महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध सर्ग 99 पेज नंबर 1438 1438 सर्ग 99। અમે બધું પ્રભુ કહેતા ને એટલે જે બચપણના અંદાજ પ્રભુ હતા, માતાપુરની બાજુમાં રહેતા પેલા ખરા, એટલે ચિરંજીવ નાના પ્રભુ હતા, નાના એ દેવજી નાની ઉંમર અમલ લવજી, વેલા લવજી એ બધા બહુ પ્રભુને બધા સંબંધ બરાબર। તો એ નાના પ્રભુ પ્રસાદ લઈને આવે ને એટલે વાટકા પ્રભુ એવું બોલે, વાટકા પ્રભુ, મોટા પ્રભુ એ વેલા જઈ ગયા નાની ઉંમર એને અચ્છા એની બેબી બેન ભારતીના પેલા નાના પેલો મોટો છે બરોબર એમનો પ્રભુ ભાઈ હતા એના ટેલિફોનમાં હતા એ જે વાટકા પ્રભુ એવું પ્રભુને કબીર સાહેબ એક જ સાખી આવડે, પ્રસાદ લઈને આવે ને માથે એટલે કે
बोले खबर है ना? दो बातें सीखी कबीर कहे कमाल को दो बातें सीख ले, कर साहेब की बंदगी और भूखे को अन्न दे. माथे प्रसाद लेने आवे तो जाओ बोले कबीर कहे कमाल को आनी पेटर्न साखी. कबीर कहे कमाल को दो बातें सीख ले, कर साहेब की बंदगी भूखे को अन्न दे. लाओ क्या એ એવું કહેતા પ્રભુ અંબાલાલ રામ નામ જે બીજ પડ્યું ને આપણા હૃદયમાં પ્રભુની રામ નામનું જે બીજ અંદર આરોપી દીધું ને એ અજર અમર છે, એ કદી જાય જ નહીં. અંબાલાલ પ્રભુના શબ્દો એ મને એવું કહેતા કે જે પ્રભુને આપણને રામ નામનું બીજ જે હૃદયમાં એકદમ પરોવી દીધું એ કદી જાય જ નહીં, અમર અજરા અમર છે એવું કહેતા. સરળ હતા સંપૂર્ણ ભગવાન એમનો ટ્યુબવેલ ત્યાં જતો ને બદલો પાયો ત્યાંથી જવાનું અને જીવન માત્ર પ્રભુ નંબર પહોંચાય ને એટલે જોડા માથે રાખીને જતા બાપજી જય પ્રભુ. પછી એમ કે જોડા માથે કેમ રાખ્યા એટલે કોઈ એમ કહે નહીં કે હું જોડા નથી અને જોડા ઘસાઈ જાય. હું માતાજી કેટલી વાર કીધું કે હવે મારે ફરી અવતાર લેવો ન પડે, બાપજી એવું કરો એવું કરો. ભાઈ તમે પરમાત્મા છો ને હજાર વર્ષ જન્મ મરણ છે તો કે તમારું અવતાર માટે કરે. સર 99 સંસારમાં તિર્યક અને સ્થાવર જાતિના ભોગો. આ 99માં સર્ગમાં કૃમિ, કીટ, પતંગ આદિ તિર્યક જાતિ અને સ્થાવર જાતિના સંસારમાં જે ભોગ હોય છે તે સર્વ વર્ણવવામાં આવશે. રામ બોલ્યા, આપણી મનુષ્ય જાતિના દુઃખ ક્ષયને માટે શાસ્ત્ર, સત્સંગ, યુક્તિ કૌંસમાં યોગ કિંવા યુક્તિ પ્રયુક્તિ, મંત્ર, ઔષધિ, તપ, દાન, તીર્થ અને પવિત્ર આશ્રમોનો આશ્રય વગેરે ઉપાયો છે. પરંતુ કૃમિ, કીટ, પતંગ આદિ તિર્યક જાતિ અને સ્થાવર જાતિના દુઃખનો ક્ષય કયા ઉપાયથી થાય, તેઓ કેવી રીતે જીવે છે અને તેઓ કેવા કર્મવાળા હોય? વશિષ્ઠ બોલ્યા, મેં આ આખા સૃષ્ટિમાંથી કોઈ પ્રશ્ન પૂછવાનું છોડ્યું હતું કે કૃમિ, કીટ, પતંગ એનો ઉદ્ધાર કેમ થાય છે? આ બધી પંચાયત છે. એટલે ભગવાન કોને કહેવાય કે બધું પોતાનું સ્વરૂપ છે, એટલે બધાને એવો અનુભવ થાય કે બધું મારું સ્વરૂપ છે, ભગવાનનું સ્વરૂપ છે, એવું બધા અંદર અનુભવે. એટલે પ્રશ્ન થાય એટલે એનો ઉત્તર આવે એટલે એને ખબર પડે કે ભાઈ આપણે કૃમિ, કીટ, પતંગ નથી, આપણે ભગવાન જ છે, ચિદાકાશ છે, બધું ચિદાકાશ. એટલે આ યોગવાથી એવું છે કે બધાને જે ભ્રમ થયો કે હું આ છું, હું આ છું, આ છું, આ છે ને આ છું, બધા નથી હું આ છું, આ છું, તો અરે ભાઈ બધું ચિદાકાશ છે. એટલે બધા પ્રશ્નોનો ઉત્તર પ્રશ્ન પૂછે, આ છે આનું શું, આ છે આનું શું, આ છે આનું શું, બધું ચિદાકાશ. એટલે તરત જ એ ચિદાકાશ જ રહે છે અને રહે, અને પેલું નથી એ ન રહે. બધા એટલું હું આ છું એ નથી અને માં ચિદાકાશ છે. એટલે ત્યાં પછી એને પરમ કહી બોલે, પરમ શાંતિ. પછી આની કોઈ ઊંડી કોઈ ઝંઝટ જપા જમેલા ન રહે. વશિષ્ઠ બોલ્યા, આ જગતમાં સ્થાવર જંગમ પ્રાણીઓ પોતાની યોનિને યોગ્ય એવા ભોગોવાળી સુખની સત્તામાં સારી પેઠે વિશ્રાંત થઈ રહેલા છે. સૂક્ષ્મ જીવો પણ આપણી પેઠે જ પોતાની યોનિને યોગ્ય એવા સુખ ભોગવવાની ઈચ્છાવાળા હોય છે, પરંતુ આપણે ભોગોમાં થોડી આસ્થાવાળા છીએ અને આપણને વિઘ્નો પણ ઓછા આવે છે. બધાને એવી રીતે વાંચવું છે કે ઓછી આપણને ભોગોમાં ઓછી આસ્થા છે, આપણને પરમાત્મામાં વધુ આસ્થા છે. આપણે મનુષ્ય છીએ એટલે આપણી અંદર જ્ઞાન છે, આપણી અંદર અનુભવ છે, બોધ છે, એટલે આપણે ભગવાનમાં વધુ આસ્થાવાળા છીએ, ભોગોમાં ઓછી આસ્થાવાળા છીએ. ઓછી એટલે થોડી, થોડી શબ્દ એટલે ઓછી. હા, થોડી આસ્થાવાળા છીએ એટલે સમજાય નહીં.
પણ ઓછી આસ્થા આપણે ભોગોમાં ઓછી આસ્થા. આપણે કાંઈ પણ એક વસ્તુ વધુ ખાઈએ બહુ ભાવતી હોય તો પછી અપખે થઈ જાય એનો ભાવ બસ હવે નથી ભાવતો. કોઈ અથાણું ખૂબ ભાવતું હોય, કોઈ મીઠાણ ખૂબ ભાવતું હોય તો પછી બહુ ખાઈએ ધરાઈને જમો તો તમારે બરાબર, પછી એમ થાય બસ સંતોષ થઈ જાય અંદર અને પછી એની ઈચ્છા ન રહે. તો આપણને ભોગોમાં ઓછી આસ્થા છે. એનું કારણ કે આપણે આત્મા છીએ, એવી અંદર આત્મા છીએ એટલે આત્મામાં ખબર છે કે આપણે આત્મા છીએ, આપણે ચૈતન્ય છીએ, આપણે જડ નથી, આપણે આ દેહ નથી, આ જગત નથી, આ બધું નાશવંત છે. એમ આપણે ભોગોમાં ઓછી આસ્થાવાળા છીએ. અને આપણે માટે વ્યવસ્થા છે આ બધી હમણાં ગણાવીએ કે સત્શાસ્ત્રો છે, સત્સંગ છે, સત્પુરુષો છે, આશ્રમો છે, અને તપ, તીર્થ, દાન, વ્રત, જપ આ બધું છે. એમ તો પણ કૃમિ કીટ પતંગ છે એના ઉદ્ધાર માટે શું એમ રામનો પૂછ્યું એ લોકોને એમ આ બધું એમ કે છે. વસિષ્ઠનું કેવું એમ છે કે આ બધું કાગ ચાલીએ છે એટલે કાગનું બેસવું ને તાળનું પડવું એટલે કંઈ કાગડાને બેસવા તાળ પડતું નથી. એવી રીતે આ બધું છે કલ્પિત છે. એ કલ્પના કરી જેમ કે ભાઈ કાગડો બેઠો ને તાળ પડ્યું, પણ કાગડાને બેસવાથી તાળ પડતું નથી. એમ આ બધું આપણે એમ કહીએ કે આ બધું ઉત્પન્ન થાય છે, પછી રહે છે, પછી લીન થાય છે, જન્મે છે, જીવે છે, મરે છે, સુખી દુઃખી થાય છે, હું તો મારું તારું કરે છે, રાગદ્વેષ કરે છે, બળા છતાં ભલા બુરા કરે છે, સ્ત્રી પુરુષ છે એવું કરે છે, કે આ ગરીબ તવંગર છે કે રાય રંગ છે કે ઊંચ નીચ છે કે વિદ્વાન મૂર્ખ છે કે સંસારી છે કે આવું બધું આ બધી જાતનું બધું વિવિધ વિચિત્ર અનેક જાતનું છે. તો આ બધું કાક કાર્ય છે એટલે કલ્પિત છે. એટલે એમાં આપણે એમ કહીએ કે આ ઈશ્વર છે ને આ માયા છે ને આ જીવ છે ને આ જગત છે, આ માણસ છે ને આ કૃમિ કીટ પતંગ જીવ જંતુ છે. તો આ માણસ છે એના ભોગોમાં આસ્થા ઓછી છે એટલે જલ્દી એને પામે જે પરમ સત્ય છે કે પરમ તત્વ છે, જે પરબ્રહ્મ પરમાત્મા છે કે પરમ પિતાકર પરમ જ્યોતિ અખંડ જ્યોતિ છે, એને જલ્દી એને બધા સાધનો છે. અને આને તો કાંઈ નથી ખબર જ નથી એમ સમજાય. તો એનું કેમ તો આ બધું કલ્પિત છે. કોઈ બીજું થયું છે એમાં કોઈ ઊંચી યોનિનો જીવ છે, કોઈ નીચી યોનિનો જીવ છે, અને કોઈ નજીક છે પરમાત્માની, કોઈ નજીક પરમાત્માથી દૂર છે. તો આને તો નજીક છે તો પ્રયત્ન કરે તેને પામી લે, થોડો દૂર છે હું નીચી યોનિનો જીવ છે, કૃમિ કીટ પતંગ કોઈ તો બિચારા શું કરે. એ બધું કલ્પિત છે. કોઈ જુદું થયું જ નથી, કોઈ સમજે જુદું થયું નથી, છે નહીં, થશે નહીં, થતું નથી. અને પરમાત્મા છે, કેવળ અખંડ જ્યોતિ સ્વરૂપ પરમાત્મા છે. એમ વસિષ્ઠનું કહેવું છે બધાનું. વસિષ્ઠને રામ ક્યાંય પણ લઈ જાય એપિયરન્સમાં તો રામ એને કાન પકડીને પાછા રિયાલિટીમાં લાવે. આ વસિષ્ઠનું કામ છે. રામ છે એ કંઈ एपियरेंस ऐसे दिखावा में चले नहीं जाते हैं, लेकिन जहाँ दिखावा का भ्रम है तो वो कुछ नहीं और वहाँ परमात्मा है, सीधा कस है, ऐसा दिखाने के लिए प्रयत्न करते हैं। तो जो जो जीव को जो पर जिस प्रकार का इल्यूजन हो, डिल्यूजन, भ्रम, मोह हो, कल्पना हो, इमेजिन, तो उसको मालूम पड़े कि हमारी कल्पना या भ्रम या मोह कुछ नहीं है और सब परमात्मा है, सब सीधा का। क्लियर? समझ में आता है? आता है। राम क्यों पूछते हैं? राम एपियरेंस में नहीं है, लेकिन जो जहाँ एपियरेंस का भ्रम हो, एपियरेंस आभास मात्र जीव जगत जन्म मरण सुख दुख, तो वहाँ वो बताते हैं इसका क्या, इसका क्या। तो ये सब काकतालीय है, कल्पित है, कुछ हुआ नहीं है, और सारा अनंत प्रकाश ही सारा अनंत प्रकाश। आकाश जेवो आखो अनंत चैतन्य प्रकाश है, એટલે પરમ પ્રકાશ, પરમ આનંદ, પરમ શાंति, अनंत प्रकाश, अनंत आनंद, अनंत। क्लियर हो गया? नया आया हो तो उसको बदनाम दे दो, सबको प्रसाद दे दो। વાંચીએ એટલે આમાંથી प्रकाश એવું પછી તો પढ़ने से तो फर्क नहीं हो जाता नहीं, सब प्रकाश से होता है।
प्रकाश तो फूल है ना, तो प्रकाश तो फूल है, अनंत पूर्ण है, तो सबको फूल प्रकाश होता होगा, ये प्रकाश से सबको फूल प्रकाश होता होगा, हाँ होता होगा। फूल सबको, ये आकाश जैसा सारा अनंत चैतन्य प्रकाश है, ऐसा क्लियर होता होगा सबको। ये दूसरा तीनों से दिख रहा है वो कुछ नहीं, जैसे स्वप्न दिखता है वो कुछ नहीं, जैसे मृगजल दिखता है वो कुछ नहीं है ना, जैसे अंदर में डोरी में सरभ्रम दिखता है तो वो कुछ नहीं, जैसे छिप में चांदी दिखती है सूर्य के तेल में, तो चांदी नहीं छिप ही है ऐसा। तो वैसे ये जो परम ज्योति अखंड ज्योति में ये सब दृश्य दिख रहा है, तो खाली हैप्पीनेस है, आभास दिखाओ वो कुछ नहीं, दृष्टा दृश्य पंख है कि नहीं? ऐसा सबको फुल प्रकाश होता होगा ना, है कि नहीं? जिसको अंदर ये जो उसकी परम शांति, परम कैवल्य, परम शांति चाहिए वो उसको यहाँ प्राप्त होती होगी, ऐसा ना है ना। प्रभु इक्वल टू बोलते कि जय प्रभु, प्रभु कृपा ही केवलम, तो उसका अर्थ क्या होता है? जय प्रभु माने जय, एक्चुअली प्रभु इक्वल टू परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति, तो जय प्रभु माने जय परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति, प्रभु कृपा ही केवलम माने परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति कृपा ही केवलम, ऐसा। तो प्रभु का एग्जैक्ट मीनिंग परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति, ना क्लियर हो गया? सबको सब दे दिया? अच्छा, ऐसा है आखिर चलता गया रबड़ के मौन आखिरी ऐसा प्रकाश है।
જમણો હાથે આપો. જોશીલ પ્રભુ ગોવા પ્રભુ પેન ચશ્મા લઈ